اس کے اوپر ہم پریسائزلی جو امپورٹنٹ امینڈمنٹ ہیں اس سے بات کریں. جو امینڈمنٹس ہیں اس سے بات کرنے سے پہلے آپ سامنے ایک سمری آ رہی ہے جو کی فائنینشیل فگر ہے بجٹ کی. اگلے سال کا پروجیکٹڈ ٹیکس ریونیو کتنا ہے, نان ٹیکس ریونیو, آپ کا ڈیفیسٹ کتنا ہوگا اور ڈیفیسٹ کی فائنینسنگ کس طرح ہوگی. اور اس کے ساتھ آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہے, وہ بڑا امپارٹنٹ ہے. بات کرنا چاہوں گا کہ جو نیکسٹ ایئر کا پروجیکٹڈ ہمارا ٹیکس ریونیو کا ٹارگیٹ ہے اس میں ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں اس کا پرپورشن 41% ہے اور 59% جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اس کا برڈن جو ہے وہ کنزیومر نے بیئر کرنا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان بھی آتا ہے اور جو صاحب سرور جن پہ ٹیکس ڈیو ہوتا ہے اس کا برڈن اس کا مطلب کم ہوتا جاتا ہے. پھر اوور دا پیریڈ جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ نے جو کام شروع کیا وہ یہ کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہے, انکم ٹیکس, اس میں بھی ایک انڈائریکٹ ٹیکس کا ایلیمنٹ آ گیا کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایف ٹی آر کا کنسیپٹ لایا گیا, پھر 48 کو این پی آر میں لے کے آ رہے ہیں, لیکن اس کو منیمم ٹیکس کر دیا گیا. جب منیمم ٹیکس آپ کرتے ہیں تو جو بزنس مین ہے اس کو پاس آن کر لیتا ہے, پھر کاسٹ کا پارٹ بنا لیتا ہے اور الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈیل ڈاؤن ہو کے کنزیومر تک چلا جاتا ہے. اور اس طرح کا جو ٹیکس ریونیو ہے اس کا اگر بریک اپ دیکھیں تو جو میجر ریونیو میجر ہے وہ میرا خیال ہے جو ہولڈنگ ٹیکسز کی انکریز کی بات ہو رہی ہے وہ حاجت آپ اس پہ کریں گے. تو یہ جو ہمارے فسکل ڈیفیسٹس ہیں, جو ہمارے جو میں ٹیکس میں ڈسٹرکشن کی بات کی ہے اوور نائٹ نہیں ہوئے. تو ان سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے مجھے پہلے سسٹم پہ نا قابل اجمیرہ کا چھیڑ جا رہا ہے, میں نے یہاں پہ رپورٹ بھی کیا ہے. وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو ہم نے بڑی محنت کی اپنے سسٹم کو خراب کرنے کی اور یہاں تک لانے کی, اور اپنے ہم وشیس سرکل میں ہیں, ہم دعا میں ہیں کہ اللہ کرے ہم اس سے پیچھا نہیں ہو سکتے. سیل ٹیکس کے ہم بات کریں, فیڈرل سیل ٹیکس کی, تو اس کے فائلنگ اور کلیکشن کا اگر انالیسس دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں تقریباً 2 لاکھ پلس مائنس جو ہیں سیل ٹیکس میں لوگ رجسٹرڈ ہیں, اور اس میں جو 1/3 لوگ ہیں وہ سیل ٹیکس ریٹرن کے ساتھ ٹیکس جمع کراتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 2/3 جو رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ اپنی نیل یا نل کی سیل ریٹرن فائل کر کے جانے ہیں. جو لوگ ٹیکس جمع کرواتے ہیں اس میں بھی تقریباً 5000 کے قریب لوگ ہیں جو 95% آپ جو ٹوٹل سیل ٹیکس کلیکشن آپ کا پے کرتے ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی سیریس قسم کی ایڈمنسٹریشن اور انفورسمنٹ چاہیے ہوگی کہ آپ کو ٹیکس بیس جو ہے اس کو بہتر کر سکیں اور جس پہ ٹیکس ڈیو ہے وہاں سے آپ کو بھی کر سکیں. امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں فیڈرل سیل ٹیکس میں. جو پہلی امینڈمنٹ ہے ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف الیکٹریسٹی. لاسٹ ایئر کا جو بجٹ تھا اس میں گڈ اور سپلائی کی ڈیفینیشن کو امینڈ کیا گیا تھا, اور پروڈکشن, ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف الیکٹریسٹی جو ہے اس کو گڈس کی ڈیفینیشن میں انکارپوریٹ کیا گیا تھا. میننگ دیر بائی اس پہ فیڈرل سیل ٹیکس اپلائی ہوگا. آلدو جو الیکٹریسٹی ہے وہ گڈس کی ڈیفینیشن میں فال کرتی ہے, لیکن اس کی جو ٹرانسمیشن ہے اس میں نہ جس طرح ایم پی ڈی سی ہے فار ایگزامپل, نہ وہ الیکٹریسٹی بائی کرتا ہے نہ وہ سیل کرتا ہے, جسٹ ٹرانسمیشن کرتا ہے. تو جو خالی ٹرانسمیشن ہے اس کو گڈس میں فال کرنا اس پہ جو ہے وہ اس سے ملاقات بنتی نہیں تھی. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ دیکھیں تو فیڈرل جو سیل ٹیکس ہے وہ اپلیکیبل ہے سیل پرچیز آف گڈس کے اوپر. تو لہٰذا کسی طرح سے بھی کسی اسٹریچ کر کے بھی آپ کو ڈیفینیشن میں نہیں لا سکتے تھے. اور اس کے علاوہ جو پروونسز ہیں جو ہمارے پاس وہ بھی اس کو فالو اپ کر رہے تھے. اور فائنلی جو ہمارا فورم ہے نیشنل ٹیکس کاؤنسل کا, وہاں پروونسز اور فیڈریشن نے ایگری کیا, اور جو لاسٹ ایئر بجٹ جو ہم نے بجٹ میں امینڈمنٹس کی تھی اس کو ریورس کرنے کا پرپوزل ہے. جب اس کو ریورس کریں گے تو اس کا امپیکٹ کیا ہے کہ آپ کو سروس کنسیڈر کر رہے ہیں. تو پروونسز میں آلریڈی لیجسلیشن ہوئی ہے. تو اب آپ نے اسلام آباد جو کیپٹل ٹیریٹری ہے وہاں پر اس کو سروس ٹریٹ کر کے وہاں پر 15% سیل ٹیکس اور سروس جو ہے وہ بھی لیوی کرنے کا پرپوزل ہے اس بجٹ میں. ریسنٹ پاس آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلیس آف سپلائی جھوٹ نوٹیفائی ہوتے ہیں ڈفرینٹ پروونسز میں, تو اس کے کانٹیکٹ میں کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں, یہ سب ٹرانسمیشن کہاں ٹرمینیٹ ہو رہی ہے, تو اس کی ٹیکسیشن اکارڈنگلی اس کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے. تو یہ جو امینڈمنٹس ہیں ان کے پہلے بھی اور بعد میں بھی جو الیکٹریسٹی ہے وہ گڈ ہی رہے گی, جیسے اس کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کی امینڈمنٹ ہے اور اس کی پرپوزل ہے کنسیڈر کیا جائے. نیکسٹ ہے ٹیئر 1 ریٹیلر. آپ کو پتہ ہے کہ جو ریٹیلرز ہیں ان کی 2 کیٹیگری ہیں. ایک ٹیئر 1 ریٹیلرز ہیں جو اپنی نارمل جو رجیم ہے سیل ٹیکس کی سیل ٹیکس میں رجسٹر ہوں گے, ہر مہینے سیل ٹیکس فائل کریں گے,
शॉपकीपर्स हैं जो जिनकी बिजली के बिल में सेल अदा किया है उस पर लाइबिलिटी चार्ज होती है। तो जो टीयर 1 के रिटेलर हैं इनको अपना सिस्टम एफपीआर इंटीग्रेट करना होता है। टीयर 1 में कौन से रिटेलर फॉल करते हैं उसमें 9 डिफरेंट कैटेगरीज पहले दी गई। उसमें 2 कैटेगरीज हैं उसको ओमिट करने का प्रपोजल है। पहली कैटेगरी जो एरिया बेस थी, या किसी शॉप का एरिया 1,000 स्क्वायर फुट है, फर्नीचर के इसमें 2,000 का डीलर हैं, इन 2 डीलर इनको ओमिट करने का प्रपोजल है। मतलब ये है कि अब जो पीछे 7 कैटेगरी रह गई हैं अगर तो आप उनमें फॉल करते हैं तो आप टीयर 1 की डेफिनेशन में आएंगे, अपने सिस्टम इंटीग्रेट करेंगे और नॉर्मल जो रजीम है उसको लाइबिलिटी वर्क करके पे करेंगे। अदरवाइज आपका जो बिजली का बिल है उसमें आपको टैक्स लग के आ जाएगा और आप लाइबिलिटी चार्ज हो जाएगी। टीयर 1 रिटेलर में दूसरी अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वो ये है कि जो लेदर और टेक्सटाइल इसमें जो वेबसाइट वैल्यूएशन करके जिनके सेल टैक्स का रेट 12% था तो 12% से जो सेल टैक्स पे करते थे उसको इंक्रीज करके 15% करने का प्रपोजल है। सेल टैक्स का फिक्स कैपिटल जो 0 रेटिंग है वहाँ पर जो आइटम लिखी होती है इसका मतलब उसमें सेल टैक्स 0 रेट से चार्ज होगा। रिसेंट पास आपने रेकोर्ड का केस देखा था कि जब वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी गई लिटिगेशन हुई तो उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उससे उनको वापस टेबल पे लाया कि आप वापस आए हम काम करें सेटलमेंट की बात की तो उनका कंसर्न ये था कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे उसकी प्रोटेक्शन होगी। इस मुल्क में जो फैसले होते हैं और बाद में कोर्ट के फैसले भी वक्त माने नहीं जा रहे तो हम कहाँ करेंगे। तो उस वक्त आपको याद हो 2022 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2022 है वो लाया होता है जिसमें सेकंड कैटेगरी में जिनके नाम होंगे उनको उनके ये एप्लीकेबल होगा और उनको सारे टैक्सेस से जो जितनी कंसेशन है और बाकी प्रोटेक्शन अवेलेबल होगी। उसमें अभी सिर्फ एक ही नाम है रेकॉर्ड कंपनी है उसका तो उसको जो रेलेवेंट उसकी प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसकी जितनी भी कंसेशन हैं उनको रेलेवेंट स्टैट्यूट में इनकॉर्पोरेट किया गया प्रोजेक्ट में। इनकम टैक्स के बारे में आपको बताएं कि सेल टैक्स भी किया गया उसको इस तरह से एफपीडी या जो कस्टम है वहाँ उसको नाम किया गया। सेकंड जो 0 रेटिंग में अमेंडमेंट है उस कैपिटल में वो आपको याद होगा कि अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी स्कीम सेंट्रल स्कीम की सारी इकट्ठी करके एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम 2021 जो है वो उसको नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें जो टोटल रजिस्टर्ड हैं उनको अगर आप रॉ मटेरियल कंपोनेंट पार्ट एंड प्लांट एंड मशीनरी बेचते थे तो उसके जो सेल टैक्स आप चार्ज करते थे वो 0 रेटिंग थी। तो जो स्कीम है एक्सपोर्ट स्कीम उसमें वर्ल्ड कमोडिटी का भी लिखा हुआ तो जस्ट उसको अलाइन करने के लिए कमोडिटी का वर्ल्ड ऐड करने का प्रपोजल है। सेल टैक्स का 6 कैटेगरी आप सब जानते हैं कि अगर किसी भी जो चीज़ है उसमें सेल टैक्स एग्जेम्पशन हो तो सेल टैक्स आप सबसे ज़्यादा देखते हैं। 6 कैटेगरी में एक अमेंडमेंट है कि एग्जेम्पशन को विथड्रा करनी की जो लिस्ट आपके सामने आ रही है इसमें रेड चिलीज है जिंजर है योगर्ट बाकी लिस्ट है। इस लिस्ट में इस बजट से पहले अगर आप उसको ब्रांड नेम के साथ बेचते थे और बल्क में बेचते थे रिटेल प्राइस में नहीं थे रिटेल प्राइस में नहीं तो वो उस पर एग्जेम्पशन थी। अब इस बजट में ये प्रपोजल है कि अगर आप ब्रांड नेम के साथ ये चीज़ें बेचेंगे तो चाहे आप वो रिटेल में बेच रहे हैं चाहे वो बल्क में बेच रहे हैं तो उन पर सेल टैक्स एप्लीकेबल होगा। 6 कैटेगरी में कुछ चीज़ों के ऊपर जो एग्जेम्पशन है वो ग्रांट करने का प्रपोजल है। ये जो चीज़ें आपकी लिखी है और एंड वाला जो है आगे कर दूँगा आईटी आपको अगर आपने बजट स्पीच सुनी होगी या डॉक्यूमेंट देखा होगा इस आईटी को इस जो बजट में है वो डिफरेंट इंसेंटिव दिए गए हैं। आप इनकम टैक्स की हर बात करेंगे लेकिन आपको ऐसे में ऐड करना हो उसमें और आगे ना जाकर बात सामना होगी तो उसमें एक इंसेंटिव ये भी था कि अगर आप जो अपनी एक्सपोर्ट का 1% उसके इक्विवेलेंट डिफरेंट आप इक्विपमेंट लैपटॉप है कंप्यूटर है को इम्पोर्ट कर सकते हैं तो उसको उन्होंने कहा कि जो सेल टैक्स है उसकी एग्जेम्पशन की प्रपोजल है। फिर सेल टैक्स में फार्मा सेक्टर हम क्योंकि अपने जो कानून है उसमें डिफरेंट तजर्बात करते रहते हैं पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं होती जिस वजह से हमारा बिजनेस मैन परेशान होता है और जो इन्वेस्टर कोई भी आता है वो जब देखता है कि पॉलिसी में कंटिन्यू नहीं है तो एक परेशानी का बायस है। फार्मा सेक्टर साथ जैसे जैसे करते रहे हैं हम काफ़ी तजर्बे किए। फार्मा सेक्टर में मेडिकमेंट्स हैं ये जो सब्सटेंस रजिस्टर्ड है ड्रग्स हैं उनके साथ इन दोनों को 0 रेटिंग थी और ये 6 कैटेगरी में सीरियल नंबर 19 पे थे। ये जो 0 रेटिंग है इसको लास्ट बजट में ख़त्म किया गया सेंट्री को लेकिन जब आप
आप उसके रिड्यूस रेट 1% ऑफर किया गया एड स्केड्यूल में, तो वहाँ पर मेडिकेमेंट्स जो है वो नहीं लिखा गया, सिर्फ सांस रजिस्टर्ड एज ड्रग्स है वो लिखा गया। जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो मेडिकेमेंट्स हैं वो स्टैंडर्ड रेट जो सेल एप्लीकेबल हो गया। अब जब वो इंडस्ट्री है ये आवाज़ उठाई तो समझ लेना चाहिए गलती भी हो गई है, तो उसको एड्रेस करने के लिए इन्होंने जो एड स्केड्यूल में एंट्री है उसको अमेंड किया और रेट्रोस्पेक्टिव अमेंड किया है कुछ 1 जुलाई 2022 से। इसका मतलब है कि अगर जो आपने टैक्स चार्ज या सेस पे किया तो उसकी एडजस्टमेंट भी एक्सपेक्टेड है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आपने टैक्स कलेक्ट करके आगे उसका बर्डन पास हम करके जमा करा दे तो वो पास एंड क्लोज ट्रांजेक्शन होगी। लेकिन अगर आपका कोई रॉ मटेरियल बड़ा होगा तो उसकी शायद एडजस्टमेंट की बात हो, उस पर शायद क्लैरिफिकेशन जाए जो जब एक्ट आए तो उसमें ऐसी बात लिखी जाए। सेकंड फार्मा सेक्टर में ये जो नेक्स्ट एंट्री ये ऊपर क्लोज एंट्री है, ये आप देख सकते हैं वहाँ पर मैंने बात की हुई है। नेक्स्ट फार्मा सेक्टर में जो API है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इस तरह ऊपर मैंने कहा कि मेडिकेमेंट्स जो सब्सटेंस के साथ थे, इसी तरह से एक्सपीसेंट हैं वो API के साथ थे, तो यहाँ पर एक्सपीसेंट मिस हो गया था तो उसको दोबारा अलाइन किया गया और यहाँ कुछ कंपेरिजन मैंने इंट्रोड्यूस किया। एक्स फाटा और पाटा, आपको पता है कि हमारे जो कुछ एरिया से फाटा फाटा कहता था उसका हमने कारपोरेट किया, मेन से फ्री में लेके आए, उनका हमने सर्टन एग्जेम्पशन दी। वो सारी एग्जेम्पशन जो है वो 30 जून 2023 को एक्सपायर हो रही थी 4 डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशन, तो उसको एक्सटेंशन का प्रपोजल है। मेरी पीछे बात से गुजारिश है कि प्लीज खामोशी इख्तियार करें सर, हमारे जो लेक्चर डिलीवर करने हैं बड़ी मेहनत से बहुत दूर से आए हैं। अब आपसे गुजारिश है कि बराए करम खामोशी से लेक्चर को सुने, ना आपकी मोहब्बत होगी। थैंक यू। ये जो फाटा पाटा वाली अमेंडमेंट हैं, ये आपको पता है कि इसमें इसको मिस यूज काफ़ी किया जाता है कि जो आपके नॉन टैरिफ एरिया है वहाँ चीज़ें बना के विदाउट एनी टैक्सेस वो टैरिफ एरिया में ला के सप्लाई की जाती हैं और उसके रेवेन्यू लॉस जो होता है और जो लोग टैरिफ एरिया में इंडस्ट्री प्लान के बिजनेसमैन काम कर रहे हैं उनको भी काफ़ी मुश्किल होती हैं। तो इसको जब एक्सटेंशन की बात की जा रही है तो मेरा इसमें कुछ सीरियस किस्म की एनफोर्समेंट मेजर भी चाहिए होंगी ताकि इसको मिस यूज या उसको रोका जा सके। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, आपको पता है कि 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर रिस्पेक्टिव जो प्रोविंसेज हैं वो सेल टैक्स चार्ज कर रहे हैं और जो इस्लामाबाद का एरिया है वो फेडरेशन के अंदर है तो उस पर जो हमारा ऑर्डिनेंस है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी टैक्स ऑन सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2001 का, जो इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में सर्विसेज हैं उसके ऊपर जो सेल टैक्स है वो ऑर्डिनेंस के तहत लेवी होता है। तो उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं उसमें एक तो IT एंड IT एनेबल्ड सर्विस है, इसमें जो फ्री लांच एक्सपोर्टर्स हैं उनको इस तरह शुरू बात की कि IT सेक्टर को इंसेंटिव दिए गए हैं, तो जो IT एंड IT एनेबल्ड में फ्री लांसर एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपनी सेल टैक्स की फाइल करने की रिक्वायरमेंट थी, चाहे इनकम टैक्स की आपने रिड्यूस रेट ले रहे हैं या वहाँ पर इंसेंटिव है उसके लिए। तो इस दफा कार्टेल इंडस्ट्री अगर आप इस जो आर्डिनेंस को पढ़ेंगे तो इसके सिर्फ सर्विसेज इनकम टैक्स है, बाकी सारी जो नियम है सेल टैक्स फेडरल सेल टैक्स की वो स्टैंडर्ड्स अप्लाई होती हैं। तो जो कार्टेल इंडस्ट्री की डेफिनेशन दी हुई है फेडरल सेल टैक्स एक्ट में, वहाँ जो फ्री लांसर है इसको वहाँ लिंक किया गया है। इसका आसान बात में मतलब किया है कि अगर फ्री लांसर एक्सपोर्टर जो है उसका 8 मिलियन रुपीज का पेमेंट अगर होगा तो कार्टेल इंडस्ट्री में फाइल करेगा, उसको सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उसको सेल टैक्स फाइलिंग की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह से IT एंड IT एनेबल्ड जो सर्विसेज है उसमें जो रेट है सेल टैक्स का जो लोकल है वो आप पहले 15% का उसको यूज करके 5% करने का प्रपोजल है। सॉफ्टवेयर और IT बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स हैं उनके ऊपर जो सेल टैक्स का रेट है वो 16% दिया हुआ था, क्योंकि इस्लामाबाद जो कैपिटल है वहाँ पर स्टैंडर्ड रेट 15% है, तो उसको अलाइन करने के लिए उसको 1% कम करने का प्रपोजल है। ट्रांसमिशन सर्विस की हमने शुरू में बात कर ली, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में उसको सर्विस में आगे 15% करने का प्रपोजल है। रेस्टोरेंट और फूड सर्विसेज, आप इंडिया में जब खाना खाते हैं प्रोविंसेज में अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें तो जो सेल टैक्स है वो 5% चार्ज होता है। तो अगर लेट्स से स्टैंडर्ड रेट 16% है तो 11% का बेनिफिट होता है। तो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में जो रेस्टोरेंट और फूड सर्विसेज है उसके ऊपर भी ये प्रपोजल है कि जब क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो
5% टैक्स चार्ज होगा और उसके अगेंस्ट में आपको इनपुट एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो बाकी होटल सक्सेस है वो भी सेंड पे करना होगा। एफपीडी में जो सी अमेंडमेंट्स की गई हैं, जो एफपीडी है इस सारी के लिए एक एक्टिविटी बेस्ड चार्ज था कि अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, आपने मैन्युफैक्चर किए हैं, प्रोड्यूस किए हैं या इम्पोर्ट किए हैं, तो तब एफपीडी आपकी लैवी होती है। अब इस दफा जो है सेक्शन 3(1) है, उसमें क्लास ई जो है उसको ऐड करने का प्रपोजल है। उसमें लिखा है कि एनी आइटम स्पेसिफाइड इन फर्स्ट कैटेगरी, तो जिसकी एक इंटरप्रिटेशन ये बन रही है कि अब इसका मतलब है कि आप किसी भी गुड या सर्विस पर एफपीडी लैवी कर सकेंगे चाहे उसने प्रोड्यूस नहीं की। इसका आसान भाव मतलब यह है कि आप जो रिटेलर हैं, जो होलसेलर हैं, डीलर है, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो आपको चीज़ सप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट है वो उसको भी एफपीडी लैवी की बात कर सकता है। तो इसको मेरा ख्याल है सीरियसली लीगल सेक्टर करना चाहिए। तो होपफुली जब बजट आएगा तो जब एक्ट आएगा तो इसमें बहस करेंगे। हमारे यहाँ एनर्जी का होता है, पहले ही काफ़ी इशूज़ हैं, तो जो हाई एनर्जी कंज्यूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जिसमें फैन हैं, बल्ब हैं, उनके ऊपर एफपीडी लैवी करने का प्रपोजल है ताकि लोग एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट यूज करें। एक्साइजेबल सर्विसेज फ्रेंचाइज है, उसके ऑलरेडी 10% के हिसाब से एफपीडी है। अगर आप इस्लामाबाद जुरिस्डिक्शन में फ्रेंचाइज की सर्विस ले सकते तो उस पर बाकी प्रोविंसेज हैं आपको सर्विस एप्लीकेबल किया हुआ है। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसको अमेंड करने का प्रपोजल है और उसमें रॉयल्टी और टेक्निकल फी जो है उसको भी ऐड किया गया है। इस तारीख के लिए पहले ये है कि एफपीआर जो है, अगर आप देखिए लिटिगेशन काफ़ी चल रही है, वो कहते थे कि रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विस है वो फ्रेंचाइज की डेफिनेशन में आता है। हालांकि वहाँ पर फ्रेंचाइज लिखा हुआ था, सुकू ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ था। अब जब एफपीआर ने खुद इसको अमेंड करके आगे रॉयल्टी और टेक्निकल फी ऐड कर रहा है तो एफपीआर का अपना स्थान था वो शायद वीक हो जाए। जब आप खुद उसको ऐड करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब पहले शामिल नहीं था। तो ये जो मैंने आपके सामने जो जितनी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो पेश की और जितनी हम डिबेट सुनते हैं और हमें हर दफ़ा कोई उसकी नई इंटरप्रिटेशन, नई बात समझ आ रही होती है, चाहे वो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से हो या हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हो, तो उस पर मैं जो अपनी प्रेजेंटेशन को एंड चर्चा करना चाहूँगा। ये राहबर यानी जो हमारे इस वक्त के प्रोग्राम है, ये राहबर हैं, किसी को का खबर होने नहीं देंगे, गुजर जाएगी शक लेकिन शहर होने नहीं देंगे, मुझे महफूज रखेंगे वादों की वसीलों में, किसी दीवार में तो मेरे दर्द नहीं होने देंगे। थैंक यू वेरी मच। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ बहुत अच्छा लेक्चर भी किया। मेरी पिछले दोस्तों से गुजारिश है कि एक काइंडली खामोशी से लेक्चर सुने। ये बहुत दूर से हमारे बाप आए हैं हमारे लेक्चर पूरा करने के लिए। आप लोगों की मोहब्बत होगी कि अगर खामोशी से लेक्चर सुना जाए। दूसरा मैं खाजा फैसल इकबाल खाजा साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो लाइस पर तशरीफ लाएँ और अपना लेक्चर डिलीवर करें। जनाब खाजा फैसल इकबाल साहब, फैसल इकबाल साहब चलता है जो वो तो हम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम यू ऑल। बेसिकली मेरा आज का जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्ट टैक्स है। ये मेरी इस बजट में 5वीं प्रेजेंटेशन है। इससे पहले मैं 5 फोरम्स पे किसी चीज़ को प्रेजेंट कर चुका हूँ। तो बेसिकली हमें शायद स्लाइड शो की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। तो रफत भाई ने आपको फिगर्स तो बता दी कि हमारे पास जो बजट में जो सबसे बड़ा डायलेमा है वो ये है कि हम ऑलरेडी एक बहुत बड़ा डेफिसिट लेके चल रहे हैं। लेकिन इस बजट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ अनफोकस्ड है, इन्होंने अनडॉक्यूमेंट्री इकोनॉमी
اس کو فوکس ہی نہیں کیا. یعنی براڈنگ آف ٹیکس بیس پہ ہم نے جتنی بات کی آئی کیپ نے, لا ٹیکس بار نے, ویریس فورمز نے, چیمبرز نے, کوئی ایک پروویژن بجٹ میں نہیں ہے جو فوکس کرتی ہو نئے ٹیکس پیئر کو پکڑنے. تمام کی تمام جو پروویژنز ہیں وہ فوکسڈ ہے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کو مزید ٹیکس کیسے لگایا جا سکے, which is very alarming. دیکھیں ہماری اس وقت جو اکانومی ہے وہ ٹوٹل فالٹ پہ ہے. آپ گجرانوالہ ایک انڈسٹریلسٹ شہر ہے, جب سے امپورٹ بند ہوئی ہے تمام ملیں بند ہو گئی. ہم نے یہ امپورٹ کا رواج ڈالا 2008 کے بعد کہ ایزی ٹیکس منی اکٹھی ہوتی تھی ایف پی آر کو. ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ جو امپورٹ ہے یہ اس کا ہمارے بیلنس آف ٹریڈ پہ کیا اثر آئے گا. کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ڈالر سکیرس ہونے کی وجہ سے ہماری اکانومی تباہ ہو جائے گی, جو آج کل ہو رہی ہے کہ ڈالر کا یہ جو ریٹ 280 یا 290 پہ ایک سال میں چلا گیا ہے, جو لاسٹ ایئر انہی دنوں میں 170 پہ تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیلنس آف ٹریڈ کا نیگیٹو ہونا. بیسیکلی انہوں نے کیا کیا کہ امپورٹ کو فروغ دیا. تمام پچھلی گورنمنٹس نے 5.5% ٹیکس ریکوری کی, اسے پریزمپٹیو ٹیکس میں رکھا اور ایزیلی اپنے بجٹس پورے کرتے رہے وداؤٹ تھنکنگ اباؤٹ کہ ہمیں وہ ایکسپورٹس پہ غور کرنا ہے جس سے ہمارا بیلنس آف ٹریڈ پازیٹو ہو سکے. ہم اپنی امپورٹ کو $60 بلین کر لیں گے اور ہماری ایکسپورٹ جو تھی تو ٹوٹل $20 بلین رہے گی. تو یہ جو $40 بلین کا گیپ ہے اس نے آپ کی اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا. اب یہ جو کرنٹ بجٹ ہے, اس کرنٹ بجٹ پہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ براڈنگ آف ٹیکس بیس پہ کام کرتے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹیکس پیئرس کو قومی دھارے میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں, لیکن اس پہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو دیٹ از ویری الارمنگ اینڈ شاکنگ فار می کہ جب ہم انسٹیٹیوٹ آف اسٹینڈرڈ اکاؤنٹنٹس میں بیٹھتے ہیں, رفت کو پتا ہوگا, ہم نے باقاعدہ ایک 13 صفحے کی پرپوزل بنا کے دی تھی کہ یہاں سے ٹیکس آ سکتا, لیکن انہوں نے کسی ایک چیز کو بھی کنسیڈر نہیں کیا. اب ہم اپنی پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں. تو the first part is super tax, section 4C. بیسیکلی یہ سیکشن انٹروڈیوس کیا گیا تھا لاسٹ ایئر ود ریٹروسپیکٹیو ایپلیکیشن کہ یہ پیچھے سے اپلائی ہو. اس میں ایک بہت بڑی انوملی تھی جسے سندھ ہائی کورٹ نے سیٹل کیا. وہ کیا تھی کہ اس میں 2 طرح کے ٹیکس پیئرس کی ڈسکریمنیشن آ گئی. ایک ایسے ٹیکس پیئر سے جنہیں انہوں نے کہا کہ آپ 1% سے 4% تک ٹیکس دیں گے, اور باقیوں کو انہوں نے کہا کہ اس سال میرے کو تو موبائل نہیں, یہ بند ہے, یہ دیکھیں یہ دوسرے ٹیکس پیئرس کو انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ آپ نے ایب نارمل پروفٹس کمائے ہیں جس میں تھا ٹیکسٹائل, آئرن, اسٹیل والے, اس طرح کی ایک پوری لسٹنگ تھی, آپ 10% سپر ٹیکس دیں گے. جب یہ پروویژن آئی تھی اسی وقت ہم نے بتایا تھا کہ یہ پروویژن ڈسکریمنیشن پہ نہیں کھڑی ہو سکے. آپ 2 ٹیکس پیئرس کو ڈفرنٹ ٹیکسیشن نہیں کر سکتے. آپ نے ہائی ارنرز کو ٹیکس کرنا ہے تو اس کا ایک میکانزم ہونا چاہیے. دوسری چیز جو سندھ ہائی کورٹ نے کہا وہ انہوں نے کہی سیکشن 4B کی موجودگی میں جو کہ ایکسپائر ہونا ہے 2022 میں 4C دوبارہ انفورس کی. دونوں سپر ٹیکس سے ریلیٹڈ ہیں اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا. تو یہ دونوں چیزوں کی وجہ سے سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ آنے کے بعد انہوں نے اسے الائن کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسے یونیفارم ریٹ دے دیتے ہیں. انہوں نے اس کا ایک سلیب بنایا, یہ سلیب کو نہیں انکریز, انہوں نے اس کے ڈفرنٹ سلیب دے دیے. اسے میں نے پچھلے سال سے کمپیئر کر دیا آپ کے لیے. 150
150 मिलियन तक अगर किसी ने इनकम कमाई है तो उसमें कोई टैक्स नहीं। 150 से 200 मिलियन तक पिछले साल भी 1% था, अब भी 1%। 200 मिलियन से एक्सीड करेंगे और 250 तक जाएंगे तो 2% टैक्स पिछले साल भी था, इस साल भी 2% है। इसी तरह 250 से 300 तक 3%, 300 से 350 तक 4% और 350 से 400 तक 4% और लास्ट ईयर इस साल ये 6% है। यानी यहाँ पे इन्होंने 2% रेट बढ़ा दिया। सिमिलरली इन्होंने 400 से 500 मिलियन का जो रेट है वो 8 और 10%, अगर 500 से ज्यादा है तो 8-10% कर दिया। यानी इन्होंने इसे स्ट्रीमलाइन कर दिया, अलाइन कर दिया कि वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया। अब ये इनकम बेस्ड है, आप जो इनकम कमाएंगे उस इनकम की बेस पे आपको ये सुपर टैक्स देना पड़ेगा। जो लास्ट ईयर था ये 8 सेक्टर से इनको 10% देना पड़ना था और बाकियों को 4% देना पड़ा। तो सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट आने के बाद इन्होंने इसको अलाइन कर दिया। अभी अगर आप लेटेस्ट देखें तो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट हमारे खिलाफ है, सिंध हाई कोर्ट की हमारे हक में है और ये मैटर सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसपे अभी भी फैसला नहीं आया। और मजे की बात यह है कि जो 2014 में इन्होंने टैक्स लगाया था वो आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी भी उसका कोई फैसला नहीं है। तो बेसिकली जब तक ये फैसले नहीं आते ये इस साल में भी एप्लीकेबल है, हाई टैक्स अर्नर्स पे भी एप्लीकेबल है और इसके स्लैब्स के साथ ये एप्लीकेबल। नेक्स्ट, एडवांस टैक्स टू इंक्लूड सुपर टैक्स, दैट इज वेरी अलार्मिंग। ये आज लाहौर चैम्बर में हमारे सदर है काशिफ अहमद, वो चेयरमैन है ये मेंबर है नॉर्मली कमेटी के। मैंने उनके जरिए ये चीज आज फ्लोट की है कि सुपर टैक्स हमेशा ईयर एंड पे कैलकुलेट हो सकता है। अब इसकी मिसाल क्या है, लास्ट ईयर मैंने 20 करोड़ रुपया कमाया, मैंने उस पर सुपर टैक्स दे दिया, ठीक है। अब अगले साल इकोनॉमी के जो हालात हैं ये सब लॉस हुई। 147 की जो प्रोविजन है वो आपको एस्टीमेट की इजाजत देती है 3rd क्वार्टर में। अगर ये एडवांस टैक्स आपको लग गया तो डिपार्टमेंट पहले 2 क्वार्टर में इसको इन्फोर्स कराएगी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर। तो ये तो बेसिकली है ही गलत ना कि पहले मेरी टैक्सेबल इनकम तो डिटरमिन हो जाए, उसकी बेस पे ये मुझे आप ये बताएंगे कि मैंने सुपर टैक्स देना है, यानी ये एक्सेप्शनल टैक्स है, ये नॉर्मल टैक्स नहीं है, ये नॉर्मल लॉ का टैक्स नहीं है, ये टर्नओवर बेस्ड टैक्स नहीं है जिसपे आप 147 के जो फार्मूला लगाते हैं। अगर आप लॉस में भी हैं तो आप टर्नओवर की फार्मूले की बेस पे अपना वो टर्नओवर टैक्स निकालते हैं और एडवांस टैक्स का फैसला कर लेते हैं। लेकिन सुपर टैक्स का आप फैसला ऐसे नहीं कर सकते। तो जो एनोमली कमेटी है एफपीआर की, उसके सामने हमने ये चीज रखी है कि भाई इसको खत्म करो, ये एडवांस टैक्स में नहीं आ सकता सेक्शन 140। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज है, आपको पता है कभी जीत हुई कभी हार हुई। स्टॉक एक्सचेंज तो मतलब हर वक्त नहीं आप पैसे कमा रहे हो, कभी आपने 15 करोड़ कमा लिया तो कभी आपने 15 करोड़ दे दी। इन्होंने ये कहा है कि जी किसी ने अगर स्टॉक एक्सचेंज में 15 करोड़ रुपए से ऊपर कमाया है तो एनसीसीपीएल उसका सुपर टैक्स विद होल्ड करेगा। व्हाट अबाउट अगर अगली ट्रांजैक्शन में उसको लॉस हो जाता है तो वो फिर रिफंड में चला जाएगा और रिफंड जैसे मिलता है वो आप सबको पता है। तो बेसिकली ये भी जो प्रोविजन है इसको भी हमने एनोमली कमेटी में डाला है कि ये दोनों प्रोविजंस 147 वाली भी और ये एनसीसीपीएल वाली भी सुपर टैक्स एडवांस टैक्स के तौर पे वसूल नहीं किया जा सकता। लेकिन अब तक ये पोजीशन है कि वो सुपर टैक्स को एडवांस टैक्स के तौर पे वसूल करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, टैक्स ऑन बोनस शेयर्स, इसकी थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ना ये भी बताया कि ये कब पहले लगा और अब
कैसे लेगा? देखिए बोनस शेयर्स इनकम की डेफिनेशन से आउट है। ये 2014 में पहली दफा बोनस शेयर्स को टैक्स किया गया। बोनस शेयर इज नेवर एवर पार्ट ऑफ इनकम, जो कि इस साल इन्होंने बना दी। इसको इन्होंने कह दी बोनस शेयर्स जो कंपनी इशू करेगी 236Z में इन्होंने इसको ले आए और उन्होंने कहा कि जी वो 10% टैक्स काटेगी, विद होल्ड करेगी जिस शेयर होल्डर को बोनस दे रही है, और अगर वो नॉन एक्टिव टैक्स पेयर है तो उसका ये टैक्स विद होल्ड होगा एट द रेट ऑफ 20%, जो कि फाइनल टैक्स है, उसकी कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब इसमें जो सबसे मतलब अगर आपने इसे टैक्स करना है तो पहली चीज तो इसको एडजस्टेबल होना चाहिए, ये फाइनल नहीं होना चाहिए। ठीक है नहीं, आपने टैक्स काटा है, ठीक है, काटो ही बोनस शेयर्स में। अब इसकी मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊं कि जब बजट बन रहा था ना तो इन्होंने एक अफवाह उड़ा दी कि कंपनी के रिजर्व्स टैक्स हो गए। आपने भी सुना होगा सब कि तमाम कंपनीज के अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स को इन्होंने जनाब ये अफवाह उड़ा दी कि ये टैक्स होने जा रही है, और टैक्स भी कितना 40% टैक्स लग रहा है उस पर। जो कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं उनके जो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं उस पर 40% टैक्स होगा। अकॉर्डिंगली लोगों ने जल्द अज जल्द प्लानिंग की, प्लानिंग करके तो जो रिजर्व्स जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने जितने अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स थे उनके बोनस शुरू कर। अब जब वो कॉज ऑफ एक्शन खत्म हुआ तो उन्होंने बोनस शेयर को टैक्स लगा दिया। अब जो बोनस शेयर्स हैं इस पर उन्होंने कैलकुलेशन क्या दी है कि अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो बुक क्लोजर के पहले दिन डे एंड पे जो प्राइस होगी शेयर की उस पे 10% टैक्स होगा। जबकि नॉन लिस्टेड कंपनी के केस में उन्होंने कहा अभी हम रूल्स बनाएंगे, बना के बताएंगे कि ये कैसे टैक्स होगा। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी डे एंड प्राइस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लोजर ऑफ उसकी बेस पे ये 10% टैक्स कैलकुलेट होगा। फॉर नॉन लिस्टेड कंपनीज उन्होंने कहा रूल्स बनाए जाएंगे। अब नॉन लिस्टेड कंपनीज में पहली बात ये टैक्स नहीं होना चाहिए। लॉ इसको जो है ना वेरी क्लियर है कि बोनस शेयर जो है वो लिस्टेड कंपनी के लिए तो चले इन्होंने टैक्स कर लिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक फैमिली अफेयर होता है, उसके जो बोनस शेयर है उनको उसको भी इन्होंने टैक्स कर दिया इस लॉ में। ये भी पॉइंट हमने एनोमली कमेटी में डाला हुआ है, अब पता नहीं इसका क्या बनता है। सेकेंडली इन्होंने ये कहा कि जो बोनस शेयर्स हैं अगर इसका टैक्स पे नहीं होगा तो कंपनी उस शेयर होल्डर के बोनस शेयर बेचेगी और ये टैक्स एफबीआर में जमा करेगी। अब लिस्टेड कंपनी के तो शेयर मार्केट में बेचे, प्राइवेट लिमिटेड के शेयर कैसे बिकेंगे? वेरी सरप्राइजिंग क्वेश्चन कि लिस्टेड कंपनी के शेयर तो चलो कंपनी ने उठाए, मार्केट में जाके उनको बेच दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर कैसे बिकेगा? ये ब्लैंकली इस लॉ में प्रपोज है कि अगर एक शेयर होल्डर जो उस बोनस शेयर्स पे अपना टैक्स नहीं पे कर सकेगा तो कंपनी बाउंड है उसके शेयर बेचे और वो टैक्स एफबीआर में जमा कराए। लिस्टेड कंपनी ने तो जमा करा दिया, उसने तो शेयर बेचे, उसने तो डिफॉल्ट में नहीं जाना। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे करेगी? तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये क्लॉज प्राइवेट लिमिटेड पे अप्लाई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पेशल रिजीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये लास्ट ईयर 14वां शेड्यूल इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट ईयर। इसमें इन्होंने स्पेशल कंसेशन दी थी मैन्युफैक्चरर्स कि वो लोग जिनकी जो टर्नओवर है एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर है वो अपनी टर्नओवर का टैक्स दें और अपना टैक्स जो है ना फुल एंड फाइनल उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगी। इस दफा इस डेफिनेशन में उन्होंने ऐड कर दिया है आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। इस डेफिनेशन में जो चेंज आई है वो क्या आई है? आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, यानी जो सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उसको भी इसमें ले आए।
और जो लिमिट है उसे 25 करोड़ से बढ़ा के 80 करोड़ तक, और स्लैब भी 3 करनी है। ये स्लैब करो यार, अब ये 3 स्लैब है कि अगर 100 मिलियन तक आपकी सेल है तो 0.25% आपका फाइनल रेट है, और अगर आपकी 100 मिलियन से 250 मिलियन है तो ये 0.5% है, और 250 मिलियन से 800 मिलियन है तो ये 0.75% है। अब इसके साथ उन्होंने आपको एक और ऑप्शन भी दी, अगर आप नॉर्मल लॉ में टैक्स होना चाहते हैं, अकाउंट्स बना सकते हैं, आप अपने अकाउंटिंग सिस्टम के जरिए आना चाहते हैं, तो आपको पहले वाले केस में 7.5%, दूसरे वाले केस में 15% और तीसरे वाले केस में 20% टैक्स देना पड़ेगा। अब एक यहाँ पर प्रॉब्लम है कि IT इनेबल्ड सर्विसेज की जो विद होल्डिंग है वो ऑलरेडी 4% पे हो गई। अब अगर एक आदमी इस क्लॉज की फायदा उठाना चाहता है तो जो फालतू टैक्स काट गया होगा वो उसको रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। तो इनको एनोमली कमेटी में हमने लिख के दिया कि इन दोनों प्रोविजंस को अलाइन करें कि अगर वो बंदा वो 0.25 या 0.5 या 0.75% में जाना चाहता है तो वो फिर अकॉर्डिंगली उसके लिए लॉ अमेंड किया जाए। टैक्स हॉलिडे फॉर SME एक्सक्लूसिवली एग्री बेस्ड, ये बेसिकली इसका तनाजुर ये है कि सऊदी अरेबिया समेत UAE परचान वाले कैसे हैं जो पाकिस्तान में बड़े बड़े फॉर्म्स सेट करते हैं सिंध में, और वो वहाँ पे गंदम और दूसरी जिनास उगा के तो अपने मुल्कों के लिए एक्सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली इन्होंने एग्री बेस्ड कंपनी जो कि 1 जुलाई 2023 से बनेगी उसको उन्होंने 5 साल का टैक्स हॉलिडे दे दी कि जो वो कमाई करेगी। ये अभी मुझे दफ्तर ने भी यही बात की कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है उसको तो हमने छोड़ दिया हुआ है, उससे हम बात ही नहीं करते चाहे जो वो मर्जी कमा है, जबकि बाकी जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है जो गलती से टैक्स नेट में आ गया है उसको हम ऐसे निचोड़ रहे हैं जैसे नींबू को निचोड़ते हैं। मतलब एक वक्त आएगा कि उस नींबू में कुछ नहीं रह जाए, बल्कि शायद वो वक्त आ गया हो। तो बेसिकली ये एग्री बेस्ड कंपनीज जो है इन पे उन्होंने कहा है कि जो 5 साल का हम टैक्स हॉलिडे देंगे। एडिशनल टैक्स अनसर्टेनिटी ये बड़ी मजाक प्रोविजन है। आप में से जिसने पिछले 5 साल में डॉलर डिवैल्यूएशन का फायदा उठाया है या कोविड में जो टाइल है खुली थी और बड़ा धड़ माल कमाया है, शौकत खाना खोला था, उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाया ना, एबनॉर्मल प्रॉफिट, उन सबको हम अप टू 50% ऑफ द इनकम टैक्स लगा सकते हैं। कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, कोई इसका सिस्टम अभी तक उन्होंने ड्राफ्ट नहीं किया। वर्ड यूज किया एक्सोजोनियस क्रेडिट्स। मुझे पहले ये समझ नहीं आया, मेरी बेटी A लेवल कर रही है, मैंने उसे पूछा, मैं कहा बेटे एक्सोजोनियस की होता है? उसने कहा पापा गूगल कर ले। तो गूगल पे मैंने देखा तो वो कहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन्स। अब एक बंदे ने रिटर्न भी दे दी, ठीक है, टैक्स भी दे दिया, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, ये एक नई लिटिगेशन है। एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन को आप दोबारा कैसे टैक्स कर सकते हैं? डॉलर डिवैल्यूएशन हुई या इकोनॉमी के जो भी हालात है, जिस सेक्टर ने भी फायदा उठाया, आप उस वक्त सोए हुए थे, आप उसको उस पर टैक्स लगाते। आज जो सुपर टैक्स लगा रही है, आप इस सुपर टैक्स को लगा देते 2018, 19, 20, 21, 22 को, कि जो इन हालात में भी पैसे कमा रहा है, कोविड में भी कमा रहा है, वो एक्स्ट्रा टैक्स दे। आपने अब आगे कहा प्रीसीडिंग 5 ईयर्स आप आगे से लगाए टैक्स अगर लगाना भी है। अच्छा, ये एक बड़ा जीरो ग्रीन कल्चर है जो पिछले 3 साल से शुरू हुआ है। इससे पहले सर भी बैठे हुए, सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट है कि रेट्रोस्पेक्टिव कोई चीज नहीं। मॉनेटरी केस में ना, जहाँ पर फंडामेंटल राइट किसी का इन्फ्रेंज हो रहा है ना, वहां पे कोई भी चीज रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती। वो
हमेशा प्रोस्पेक्टिव होती है। ये 3 सालों से एक नया काम शुरू हो गया है, 2022 खास तौर पे हम जिस कानून को चाहते हैं हम पीछे से अप्लाई करते हैं। हमारा एक क्लाइंट है, उसकी दिसंबर 31 क्लोजिंग थी 2021 में, उसकी रिटर्न गई दिसंबर 22 में, उसमें कहते सुपर टैक्स दो। अब उसका ऑडिट हुआ 21 में, ऑडिटर ने प्रोविजन भी नहीं डाली, उस पर सुपर टैक्स एग्जिस्ट भी नहीं करता था। 22 में क्योंकि वो स्पेशल ईयर है तो वो 1 साल बाद रिटर्न जाएगी, उसके ऊपर केस बना दिया कि सुपर टैक्स। अब इस चीज पर सोचने की जरूरत है एक्सचेकर को कि लॉ बनाते वक्त रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ये सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, सिर्फ एक जो जिसकी बेस पे ये 2016 में रिपोर्ट ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक्सचेकर को राइट है कि वो कोई भी चीज रेट्रोस्पेक्टिव कर सकते हैं। उसको बेस बना के इन्होंने इकोनॉमी का ये बेड़ा गर्क करना शुरू किया है कि आज की दिन में मैं जो टैक्स सोचता हूँ उसे मैं पिछले साल में नहीं लगा। एक पास्ट और क्लोज ट्रांजेक्शन है, रिटर्न मैं दे चुका हूँ, टैक्स उसका मैं दे चुका हूँ, टैक्स आप वसूल कर चुके हैं, आप कह रहे हैं मैं दोबारा से डिटरमिन करूंगा और डिटरमिन करके 50% टैक्स की लूट। अब वो पैसा वर्किंग कैपिटल साइकिल हो गया है, उसमें कई और प्रोजेक्ट्स लगे हो गए या लोग खा पी गए। हम तो टीम है, अगर हमें से किसी ने ये पैसा कमाया होगा उन्हें घर बना दिया में या खा पी गया हमें चला, अब वो घर बेचेगा। तो बेसिकली ये जो कानून है ये बिल्कुल अहमकाना कानून है, इस पे वैसे श्योरिटी फाइनेंस मिनिस्टर ने दी है कि इस पे सोचेंगे दोबारा। नेक्स्ट है जी इनहैंसमेंट ऑफ सर्टेन विथहोल्डिंग टैक्सेस। अब सर ये एक ही उनके पास चारा था, अगले क्या हो, इन्होंने क्या किया है 153 और 152 उसमें जितने टैक्स है पुराने टैक्सों में 1% बढ़ा दिया। उन्होंने कहा रेवेन्यू भी आएगा ना, लोगों को लोग जबरदस्ती से कल वहां पे ये बात हो रही थी शवाबतुल्ला साहब के साथ लॉ टैक्स बार में, वो अपनी प्रेजेंटेशन कर रहे थे। सिर्फ इस प्रोविजन से 280 अरब रुपया इकट्ठा होना है। अब मुझे बताएं 280 अरब रुपया इकट्ठा करने के लिए सारे पाकिस्तान को उन्होंने स्टेबल लगा। और भाई सोचो नए टैक्स पर कैसे निकले, उनसे पैसे कैसे लेते। आप एग्जिस्टिंग टैक्स पर वो कह रहे हैं जब 4% रेट है वो 5 हो जाएगा, 4.5 है वो 5.5 हो जाएगा, 3 है वो 4 हो जाएगा, 8 है जैसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है वकील है 8% दे रहे थे अब 9 देंगे, उसके बाद 10% 11 हो जाएगा, कंपनी 6.5 7.5 और अंदर केसेस 7 से 8%। यानी जहां पर जो रेट है उसमें 1% ये तो ना सिके चाहिए है ना कानून बनाने वाले की, जिथे जो रेट देता है उसे 1% बढ़ता है। यानी कानून का कोई जवाब नहीं है, जहां जो रेट दिया हुआ है वहां पे वो कहता है कि 1% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इन कमर्शियल इंपोर्टर्स जो 3rd शेड्यूल पे हैं वो 5.5% टैक्स दे रहे थे, उनके लिए उन्होंने 6% टैक्स किया, उनको 0.5% बढ़ गया। उसके बाद जो रेमिटेंसेस क्रेडिट कार्ड ये ठीक किया है, ये सिर्फ अमीर लोग करते हैं, उन्होंने बच्चों को पैसे बाहर भेजने होते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इसके जरिए वो 1% टैक्स होता था से 5% करते हैं। ठीक है, जिसने बच्चे बाहर पढ़ाने हैं वो 4% एक्स्ट्रा टैक्स पैसे थे, यू शुड बेयर दैट, ये ठीक किया। बैंकिंग कंपनीज में उन्होंने एक नया कानून लेके आए, वैसे ये कानून पहले तो मौजूद था, इसको उन्होंने थोड़ा सा और इलैबोरेट किया। उन्होंने कहा कि जो बैंकिंग कंपनीज हैं उनका जी नॉर्मल टैक्स है 39%, वो अगर माइक्रो एसएमई लो कॉस्ट हाउसिंग और फार्म क्रेडिट इनको लोन देते थे तो उस इनकम पे उनको 20% टैक्स लगता था। उस इनकम की 10 मिनट और नहीं 10 मिनट कहते हैं, उस
क्या होता था कि नॉर्मल टैक्स 39 की जगह 20%। अब उन्होंने इस वक्त आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो है उन सबको भी इसमें डाल दिया है कि अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनीज को लोन देंगे तो आपको 20% जो है उसके प्रॉफिट का टैक्स देना पड़ेगा। सेक्शन 67 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसके तहत आप प्रोरेट करके अपने प्रॉफिट को लदा करेंगे और बाकी प्रॉफिट पे अब 39% टैक्स बैंक देगा और इस पे 20% देगा। फेडरल गवर्नमेंट को जो कोई गेन होगा सॉवरेन टैक्स से वो एग्जाम्प्ट करती है, पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल में ये क्लास डाल दी। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसको उन्होंने ये एग्जम्पशन दे दी है। हायर रेट ऑफ टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस रेट को भी उन्होंने इंक्रीज कर दिया जी और साथ इसका एसआरओ भी इशू कर दिया। एडवांस टैक्स ऑन कैश विड्रॉल्स, ये बेसिकली पुराना लॉ था जिसको दोबारा लाइव कर दिया है, लेकिन शुक्र है सिर्फ नॉन एक्टिव टैक्स पेयर के लिए। वो अगर 50,000 रुपये से ज्यादा एक दिन में बैंक से कैश निकालेगा तो उसको 300 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। ये सिर्फ नॉन एक्टिव टैक्स पेयर के लिए है, बाकी शुक्र है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट को उन्होंने इस तरह हिट नहीं किया। मिनिमम टर्नओवर टैक्स लिस्टेड कंपनीज को रिलीफ दिया, सिर्फ मेरे ख्याल में सब कंपनीज के लिए होना चाहिए था। 7% रेट से इसको 1% कर दिया। नेक्स्ट है इम्यूनिटी ऑन फॉरेन रेमिटेंस। पहले आप साल में 50 लाख मंगवा सकते थे और 111(4) में उसका सवाल नहीं होएगा, अब आप $1 लाख मंगवा सकते हैं। $1 लाख की फॉरेन रेमिटेंस जो है उसे 111(4) से इम्यून कर दिया। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की सिर्फ डेफिनेशन चेंज की है और इसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये उन्होंने हतमताई की कब्र पे लात मारी है कि अगर एक आदमी अपना घर बनाता है तो उसको उन्होंने टैक्स क्रेडिट दे दिया कि जी उसके टैक्सेबल इनकम में से 10% कम करेंगे सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 1 मिलियन। अगर एक आदमी को घर बनाता है इस साल 2024 में तो उसको 10% टैक्स क्रेडिट मिलेगा टैक्सेबल इनकम का, या 1 मिलियन रुपीज विच एवर ऑफ टू इज लो, इन दोनों में से जो लो। ये बड़ी जरूरी प्रोविजन थी। 236 के एग्जाम कर दिया मैंने नॉन रेजिडेंट्स जिनके पास नाइकॉप होगा वो लोग जो है उनको ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जब वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं आपको पता है 2% टैक्स एट सोर्स को भरना पड़ता है। तो जो नॉन रेजिडेंट है, जो जिसके पास नाइकॉप है या वो नॉन रेजिडेंट है उस साल में पाकिस्तान में, उसको ये टैक्स एग्जाम कर दिया। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को भी उन्होंने ये इम्यूनिटी दे दी है कि अगर कोई बंदा ये करता है तो 10% ऑफ द टैक्स क्रेडिट मिलेगा टैक्स और या 5 मिलियन दोनों में से जो कम होगा। बेसिकली दे आर एमिंग टू प्रमोट इट बट द अमाउंट इज वेरी लो। ये 5 मिलियन की जगह शायद 50 मिलियन होना चाहिए था, जो आजकल हालात है कंस्ट्रक्शन में। रीट के लिए अगेन उन्होंने बहुत बड़ी एग्जम्पशन दी है कि उन्होंने कहा 30 जून 2024 तक रीट जो है वो एग्जाम करेगी। रीट के जो प्रॉफिट एंड गेन्स हैं, ये जो बड़े बड़े इदारे आजकल रीट के तहत बढ़ रही हैं, एसईसीबी में रीट आप रजिस्टर कराते हैं या स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनीज बनाते हैं, उनकी इनकम पहले 30 जून 2023 तक एग्जाम थी, अब 24 तक एग्जाम होगी। एसोसिएट्स की डेफिनेशन में उन्होंने चेंज लेके आए हैं, वो वही है चेंज जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है और IAS 27 कहता है। वो कहता है एसोसिएट खाली वो लोग ही ने जिन्हों की शेयर होल्डिंग है या जो पार्टनर्स है। अगर एक आदमी दूसरे के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है तो वो भी एसोसिएट है। यानी मैं और इत्तिसाम यहाँ पे 2 बंदे बैठे हैं, अगर इत्तिसाम मेरी
इंतजाम जो है वो भी मेरा एसोसिएट है। एवरीबडी हु हैज इन्फ्लुएंस ऑफ दैट अदर पर्सन, ये दोनों को एसोसिएट कंसिडर किए जाएंगे। ये डेफिनेशन ऑलरेडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी दी हुई है और कंपनी लॉ में भी दी है, उसको इन्होंने यहाँ पे इनकम टैक्स लॉ में इंपोर्ट कर दिया। रिकवरी ऑफ लायबिलिटी अंडर लॉस, कस्टम ने कहीं छापा मारा, सोना मिल गया, प्राइस बॉन्ड मिल गए, या पुलिस ने कहीं रेड किया, कैश मिल गई, तो वो रिपोर्ट करेगी एफपीआर को, आज भी अपना टैक्स भी वसूल करो। ये जो अभी हम देख रहे हैं सिर्फ में एक घर से 70 करोड़ रुपया निकल आता है, 80 करोड़ रुपया निकल आता है, वो छापा मारता है। ये तो उसके लिए लेके हैं कि अगर किसी और लॉ इन्फोर्सिंग इदारे ने कोई कार्रवाई की है जिसमें एफपीआर का रेवेन्यू भी इन्वॉल्व है, तो उसको एफपीआर इस सेक्शन के तहत रिकवर कर सकेगा। ऑटोमेटिक इशुएंस ऑफ एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, ये बहुत पेंडिंग थी सबकी रिक्वायरमेंट। 152 सेक्शन में अगर मैं किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करता हूँ तो मुझे 152(5) में कमिश्नर इनकम टैक्स से इजाजत लेनी पड़ती है। अब उन्होंने क्या है, मैंने एप्लीकेशन डाली, 30 दिन में अगर कमिश्नर साहब ने इजाजत नहीं दी तो मुझे ऑटोमेटिकली वो इजाजत आ जाएगी, मुझे उसका पीछा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए वो आईआरएस को अमेंड करेंगे, मेरा ख्याल है अभी तक उन्होंने सोचा नहीं आईआरएस को अमेंड करने। फाइनल टैक्स ऑन इंटरनेट एक्सपोर्टर्स, ये एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है आजकल। इंटरनेट एक्सपोर्ट को एफबीआई नहीं मानता, वो कहते हैं जी जाके एसपीओस लेके आओ और बैंक से मोरे लगवा के लाओ, इंटरनेट जो एक्सपोर्ट है उसकी गुड होल्डिंग दिखाओ, फिर इंटरनेट एक्सपोर्ट को मानेंगे। उसको इन्होंने यहाँ पे कैटर फॉर कर दिया है। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम 2021 में जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको अगर कोई बंदा लोकल सप्लाईज कर रहा है और वो एक्सपोर्टर है तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की जरूरत अब नहीं रहेगी। ये कुछ शायद और अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसको मैंने खुद 3-4 केसों में भुगता हुआ कि वो कहते हैं कि आप स्पेशल परचेज ऑर्डर के साथ अप्रूवल भी लेंगे। फाइनल टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 0.25% उन्होंने कर दिया है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि आपको पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा और आपको पीआरए की और सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत भी नहीं। अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड हैं तो फिर आपको पीआरए और सेल्स टैक्स रिटर्न दोनों नहीं देनी पड़ेगी। एडवांस टैक्स ऑन फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर्स बहुत अच्छा है। इंडोनेशियन मेड्स मंगवा लेते थे लोग बच्चे से मारने के, ठीक है, उन्होंने कहा जरूर मंगवाएं, लेकिन इन्हें मंगवाने पे 2 लाख रुपए सालाना टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप बाहर से कोई भी वर्कर मंगवाते हैं अपने सोलर के लिए तो 2 लाख टैक्स देंगे। बाकी इसमें कोई खास चीज नहीं। टैक्स एग्जम्पशन जो है ये इन्होंने दी है फ्लड विक्टिम्स के लिए, जितने इदारे बने हैं उन सब पे टैक्स एग्जम्पशन देते हैं, यानी उसके तहत जो इम्पोर्ट होगी, जो फंड मिलेगा, उस सब को ये टैक्स एग्जाम करती है। थैंक यू वेरी मच। माशाअल्लाह जी, बहुत खूबसूरत अंदाज से जनाब फैसल इकबाल ख्वाजा साहब ने इलेबोरेट किया और हमारे जो दूसरे स्पीकर साहब हैं उन्होंने भी इलेबोरेट किया। मैं समझता हूँ कि तमाम दोस्त साहब इससे काफ़ी ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। मैं इज्जत नाब मियाँ तौकीर असलम साहब, चेयरमैन एडमिट ट्रिब्यूनल इंडियन रेवेन्यू पाकिस्तान, उनसे गुजारिश करता हूँ तो बताइश पर तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मियाँ तौकीर असलम साहब।
Rahman Rahim. बहुत मुबारक और न्यू ऑफिस बेरस ऑफ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जिन्होंने मुझे मौका दिया इधर आने का, वेलकम किया, और एज अ चेयरमैन ये मेरा पहली रिसेप्शन है, और थैंक यू टू आदिल साहब, मियां गोपाल साहब, डॉक्टर साहब, इशफाक रजी साहब, काफ़ी जाने पहचाने चेहरे नज़र आ रहे हैं। और गुजरांवाला की मोहब्बत अगर मैं जिक्र करूँ, जब मेरी पहली अपॉइंटमेंट हुई थी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तो ये मेरा पहला स्टेशन था, और आई केम हियर एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो कह लेंगे मेरा कैरियर का स्टार्ट गुजरांवाला से हुआ था, जो आप यहाँ तक पहुँचा। बाकी थोड़ी बहुत चल रही है, लोड ऑफ टैक्सी भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। जब मैंने वकालत भी की तो टैक्स के ही केसेस मेरे पास ज़्यादा रहे, और फिर उसके बाद भी अभी तक भी है टैक्स के साथ में अटैच हूँ। अब थोड़ा सा जो लेक्चर्स सुने हैं, थोड़े प्रेजेंटेशन थी, तो ये जो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट आती है हमारे फाइनेंस एक्ट के थ्रू, और अभी तो फाइनेंस बिल है, अल्टीमेटली आफ्टर डिलिब्रेशन से फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी अमेंडमेंट की जरूरत क्यों है हर साल? पूरा टैक्स जो है थोड़ा स्टेबलाइज होता है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है, और पता चलता है कि वो खत्म हो गया और नई प्रोविजन आ गई है। शुड लॉ बी सो अनसर्टन? ये सवाल है। अनसर्टन लॉ विल क्रिएट लिटिगेशन। 1979 का जो लॉ था, जिसमें हमने अपना असेसमेंट स्टेज, जो असेसिंग ऑफिसर की स्टेज होती है, उसमें गुजारा, काफ़ी हद तक वो सुप्रीम कोर्ट तक अपने ना वो स्टेबिलिटी हासिल कर चुका। जो इंटरप्रिटेशन होनी थी, जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन सरफेस पे आई ड्यू टू लिटिगेशन, वो अल्टीमेटली कल्मिनेट हो गए तो सुप्रीम कोर्ट तक ही जाती है। ये 4C 7 E वगैरह ये सारे वहीं पर अल्टीमेटली लैंड करेंगे। इस अप्रोच को एम्बुलेटरी अप्रोच कहते हैं। लॉ में हमारा जो लॉ, टैक्स का लॉ जो है, ये ऐसा प्योर लॉ नहीं है, इट इज अ स्पेशल लॉ। एक मकसद के लिए बनाया गया है, और मकसद उसका यह है कि द स्टेट हैज अ राइट टू जनरेट रेवेन्यू, जो उसकी अर्निंग है बेसिकली। अगर एक इंडिविजुअल है तो उसकी एक अर्निंग है, कोई तनख्वाह लेता है, कोई कारोबार करता है, कुछ करता है। स्टेट जो है एज अ होल उसको अगर लिया जाए तो उसकी भी एक इनकम होती है। इसे जो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान की इनकम होगी, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अगले साल के लिए डिसाइड कर रही है कि जो पैसे पाकिस्तान पास आएंगे इस साल में, फ्यूचरिस्टिक होती है, जैसे प्रोडिक्शन बेसिकली, उसको हम कैसे खर्च करेंगे। जब इनकम डेफिसिट हमारे पास बजट बनता है, फिर उसमें कर्जे डालने पड़ते हैं। तो ये कह लेंगे इशू ऐसे समझेंगे, एक बाप अमीर होता है ना, उसके घर के अंदर जो जो चीज़ें वो प्लान करना चाहते सारी इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। when the government is poor, जैसे समझेंगे गरीब बाप है, वो अगर एक चीज़ करने जाएगा तो करता है, थोड़ा सा तो बंद हो जाएगा, पैसे कम हो गए हैं, वो जाके कर्जा उसके बाद एक ऑप्शन रह जाता है, वो फिर हम जाते हैं IMF के पास, यहाँ पे फ्रेंडली नेशंस के पास जाते हैं, और इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान का टैक्स पोटेंशियल जो है इससे ज़्यादा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडस्ट्री बंद हो रही है। द थिंग इज ऑफ बैलेंसिंग, इसको बैलेंस कैसे करना है, वहाँ पे ट्रिब्यूनल कैसे फिट होता है। वैसे बात है कि नॉट चार्जिंग अथॉरिटी, द FDI इज चार्जिंग अथॉरिटी। हम कहाँ पे फिट होते हैं? वी आर द सेकंड अपील। एक अपील आपको कमिश्नर अपील देता है, उसके बाद ये एक गरीब पर्सन जो समझता है कि मेरे अभी भी
जो ड्यू टैक्स टू द स्टेट जो है वो अभी भी अनलॉफुल है या अनजस्टिफाइड है, या उसको सुना नहीं गया और क्या लेंगे उस पर इम्पोज हो गया है, या उसके ऊपर पेनल्टी लग गई है, या उसको विथहोल्डिंग टैक्स का डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया गया है, तो न्यूमरस सिनेरियोज जो है वो हमारे पास आते हैं। अब ये when the start of the law making procedure जो हमारा है वो सिरे से ही, जैसे फैसल साहब ने भी बताया, आजा साहब ने, ये शुरू से उसका नजर आ रहा है कि ये डिफरेंट कह लेंगे रिजल्ट को देगा कि जो डिजायर्ड रिजल्ट ही नहीं है। इशू ये है कि टैक्स जो है आया वो हैंड इन द एक्ट थ्योरी को कहा जाता है कि अगर मुर्गी की दवा हो जाएगी अंडा कहां से आएगा? व्हाट इज द हैंड? वो है बिजनेसेस, प्रोडक्शन, सेल्स, सेलेबिलिटी लोकल भी हो तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर देगी, एक्सेसिव प्रोडक्शन आपकी होगी तो अगर वो आपको एक्सपोर्ट भी हो जाएगी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट जनरेशन जो है ये अल्टीमेटली नेशंस को प्रोपेल करती है आगे। टैक्स जो है वो बदकिस्मती से से कि ट्रस्ट डेफिसिट इस पे रहा है आवाम का और लेजिस्लेचर का, स्टेट यहाँ पे टैक्स इम्पोजिंग लेजिस्लेशन जो है वो डेफिसिट जो है वो नैरो डाउन नहीं हो रहा। ये कह लेंगे अगर मैं थोड़ा सा अपने दौर की या फिर थोड़ा सा तो देखा कि गवर्नमेंट ने दो तीन सेक्टर्स जो होते हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं स्टेट के लिए फॉर डेवलपमेंट। वन इज एक्सपोर्टर्स एंड द अदर इज द कॉन्ट्रैक्टर्स। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाने तो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं होगा तो आपको बाहर से लाने पड़ेंगे। अगर बड़े कॉन्ट्रैक्ट मुल्क में होंगे तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोकली बन जाएंगे। तो 92 में उन लोगों ने FTR का लॉन्च चलाने हो गया, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। रीजन क्या थी कि ये ले जाते हैं फंड बहुत ज्यादा से बच जाते हैं। एक काम अब विथहोल्डिंग टैक्सेस पहले 50,000 एक सेक्शन होता था, उसके अंदर एक चंद थोड़ा एक सैलरी के दो सेक्शन थे, बहुत मिनिमल था। जब 2001 का ऑर्डिनेंस आया तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना ये ट्रांसिटरी है, ये अल्टीमेटली विथहोल्डिंग खत्म हो जाएगी तो लोग मैंने पीरियड टू पे जो है ना उसकी इनकम प्रॉपर असेस होगी और उस पर जो टैक्स है ना वो डिटरमिन किया जाएगा और एक जो वो डिक्लेयर करेगा हम उसको समझेंगे ये ट्रू है, 120 दे दिया, हर किसी का जो है ना वो सच्ची रिटर्न भरेगा। सच्ची रिटर्न तो आई नहीं, उन्होंने कहा कि आप हम 120 से डिफर करना है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है इसको भी कहेंगे। 120 तो दे दिया, अब 120 जो है उससे डिमांड जो है उन्होंने क्रिएट करेंगे तो उनकी भी एमपीआर होती है। कलेक्शन कहाँ से आ रही है उनको पता चल रहा है कि असेस करके तो पाकिस्तान से टैक्स आ ही नहीं सकता, कभी पाकिस्तानी की जेब में पैसा जाएगा ना वहां से निकालना मुश्किल नहीं काम है। उन्होंने कहा कि जेब में जाने से पहले जो है ना अपना हिस्सा को मत ले, जिसको आप रिपोर्टिंग टैक्स कहते हैं। वो बढ़ते 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 हमने जो देखा है कि आई थिंक 236 जो है ना उसका भी आई थिंक के और डबल लेटर भी इसमें आ चुके हुए हैं और हर साल गवर्नमेंट ढूंढ रही होती है कि इसमें कोई नया में कोई ना विथहोल्डिंग टैक्स नजर आ रहा है कि किसी स्टेट की या कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी कल फॉर्मल सेक्टर के साथ कोई लेन देन नजर में आ जाए तो हम इसमें कोई विथहोल्डिंग टैक्स इम्पोज कर दें। ये विथहोल्डिंग टैक्स एक रिग्रेसिव, ये डेवलपमेंट को रिटार्ड करता है। When the
उस इकॉनमी ने वैसे ही कोलैप्स होने जाना है जहाँ पे पीपल स्टार्ट फीलिंग द ट्रांजैक्शन। जब ट्रांजैक्शन करते हुए लोग डर रहे हो ना, वो इकॉनमी जो है मेरी नजर में वो यहाँ तो इनफॉर्मल हो जाएंगे क्योंकि हम फॉर्मल सेक्टर में आते ही नहीं हैं। और दूसरी बात इस पर ये ऑप्शन होती है कि जी वो कहते हैं ट्रांजैक्शन जो है ना ऐसे मैनिपुलेट करूँगे कि मैं इसको खातों में न डालूंगा। अब ये बात के डिपार्टमेंट कैसे इन्वॉल्व होते जो दूसरा डिपार्टमेंट ने किया काम कंप्यूटराइजेशन। कंप्यूटराइजेशन ने असेसिंग अफसर का और एक जुडिशियल माइंड की एप्लीकेशन जो है ना उसको डिस्कनेक्ट किया है। एक आदमी है वो रिटर्न भर देता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में चली जाती है, वो वहां पड़ी रहती है। 120 नो इज नॉट अ जुडिशियल ऑर्डर क्योंकि एक असेसिंग पार्टी ने उसको एग्जामिन ही नहीं किया। कितने के वो चेक कर लेते होंगे। सो मिसट्रस्ट ऑफ द कंप्यूटराइजेशन सिस्टम जो है ना वो भी आसानी तो हो सकती है बिकॉज कोई ग्लिचेस नहीं है। जब ग्लिचेस आते हैं तो पीपल हैव प्रॉब्लम्स। जैसे कहते हैं कि पीएस लगा दिया उन्होंने, ये रियल टाइम टियर 1 जो आपकी पॉइंट ऑफ सेल, अब बिजली चली जाती है या इंटरनेट जो है वो स्लो हो जाता है या इंटरनेट बंद हो जाता है। अब गार्ड खड़ा है वहाँ पे काउंटर पे, अब वो क्या करे जो बट्टी पे जो बैठे हुए हैं, एक इनवॉइस कागजों में दे रहे हैं, कुछ ना कुछ करेगा। सो कंप्यूटराइजेशन जो है उसके ऊपर हमारी रिलायंस आने से, लेकिन उसको ट्रस्ट जो है ना वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। द ट्रस्ट इज स्टिल मिसिंग। नेक्स्ट हमने जो मर्जर किया है इनकम टैक्स का और सेल टैक्स का 2009 और इनकम टैक्स में जो सेल्फ सेटलमेंट होती थी, सेल टैक्स में फेडरल साइड में कस्टमर में कभी सेल्फ सेटलमेंट नहीं है। इट हैज टू बी अप्रेज्ड बिकॉज़ गुड्स के रिलेटेड सुपरवाइज मोड में वो करती रही है। हमने उनकी रिटर्न को भी कह दिया कि ये सेल्फ सेटलमेंट में चली गई और वहाँ पे भी ऑडिट की वो प्रोविजन सेम हमने उधर दे दी और नॉट यूज कर दिया सेटलमेंट। पहले ही होता था कि बेसिकली एजुकेशन सेक्शन होता था और मुझे याद है जब मैं कैरियर में आया था शायद मेरा पास जो है अक्सर इन ऑल एरिया ऑफ तरफ किया, मतलब कस्टम्स में भी रह चुका हूँ, इनकम टैक्स में भी, सेल टैक्स, फेडरल साइड, ऑल ऑफ देम। एजुकेशन क्या था? 45 सेक्शन आई थिंक होता था इन सेल टैक्स। इनकम टैक्स में जब हम कंपनी में होते थे वहाँ पे एक डेस्क इंस्पेक्टर कहते थे जो हम लास्ट में यूज करते हैं डेस्क ऑडिट, जैसे कि वहाँ से आया है। डेस्क इंस्पेक्टर जो है वो आपके जितने खाते आप लेके आते थे ना कंपनी की तरफ से, सारी कंपनी होती नॉर्मल वो एक सिनॉप्सिस बना के पूरा करता था कि इसको मैंने एग्जामिन किया है, इसकी ये एक हेड जो है ना पिछले साल से हिसाब तक नहीं रखते, दिस मतलब जो भी इसका है जो फिर टैक्सपेयर की साइड से रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो उसमें उसको और डीसी साहब जो है वो एजुकेटिंग फंक्शन परफॉर्म करते थे, वो दोनों को स्टूडेंट थे। सेल टैक्स में भी एक कंट्रोवर्शियल कोड होती थी, फेडरल साइड की कंट्रोवर्शियल कोड होती थी। जरूरी नहीं है कि डीसी एजुकेशन उसके ऊपर शो पर से चला जाए, काफी चीजें उधर ही ड्रॉप हो जाती है इसको फर्दर प्रोसीड करने के लिए, इसलिए वो नैरो टाइम जब 120 डेज तक जब शो पर हो गया तो किसी आप उसको कंक्लूड करना है। अब उधर कहते हैं गुड वीयर मूव हो गई, 36 ही खत्म किया, 45 ही खत्म तो 11 में डाल दिया। मेरे नजर में एजुकेशन हो नहीं रही। फिर हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो इशू है कि हमारा जो टैक्स है ये प्योर लॉ नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सिविल प्रोसीजर कोड है, कहीं है वो पता चला जब वो बने थे आज तक तो ऑलमोस्ट सेम है। हमारा सेम क्यों नहीं रह सकता? पहले तो बात है ये फाइनेंशियल लॉ है,
It relates with money and accounting and finance. Balance sheets आती हैं, financial statements आती हैं. So there is you have to understand the cash flow and the movement of money and how business is done in the financial domain. Depreciation होती है, amortization होती हैं, licenses, petroleum concessions, ये वो type की चीजें जो ना finance के related. For that reason, finance में आ गया. Next है कि ये एक regulatory law है. State ने policy के through state policy उन्होंने certain sectors को encourage करना है, certain को उन्होंने different treatment देनी है पहले, restrictive type of. इसलिए हमारे schedules हैं. इसको 6 schedule में डाल दो exemption दे दो, इसको 2nd schedule में डाल के exemption दे दो, इसको rate कम कर दो, इसका ये कर दो, वो करो. When you do that, आप एक fiscal policy जो है वो लागू कर रहे हैं. Next है this is also regulatory law. Regulatory law ये है कि आपके पास ये commissioner audit है, ये commissioner enforcement है, ये करेगा, वो judicial order से पढ़ते हैं ना, तो पता चलता है कि यार exemption लेने जाना है, तो regulatory formula है, किसको देनी है, किसको नहीं देनी, वो कहते हैं commissioner decide करेगा. तो एक regulatory law है. उसके बाद जब स्टेट पे आगे तो then first time जो आता है जो वो एक adjudication process के handle होता है आपका कुछ कहते हैं मेरे नजर में audit observation और audit report देना जो है ना वो administrative domain में है. It is the department है और administrative की approval ले auditorship पे ले 10 दफा inspector से पूछे किसी से पूछे स्टॉक और नोटिस का इशू हो जाता है वो adjudicative process में enter हो जाता है. Which culminates into the order original, the assessment order, income tax or the tax order original. That is the adjudicatory order. Then we have a law which faces numerous litigation. क्योंकि इतने चीजों को करके चलाना है litigation को different type क्या है कि एक process सही follow किया हुआ. इसी तरह में opportunity इस जगह को फाइनेंस को पूरा नहीं समझ पाया, कभी वो बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, ये वो सारा. सो आफ्टर दैट ऑर्डर रिजल्ट हम जब अप्रैल में आते हैं तो उनकी काम लिटिगेशन फॉर्म है. फिर हमारा सेम लॉ जो है ये 3% ऑफ एडवोकेसी में आई ना, तो वो 3 टाइप से मूव करता है, वो भी अनडिफाइंड है. There are 3 methods जो दुनिया में अडॉप्ट होते हैं. One is the investigative, the second is the inquisitional, और तीसरा जो है वो adversarial. Investigative यहाँ तक है कि वो 176 का नोटिस दे, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मंगवाए, आपसे रिकॉर्ड फॉलो करे, 177 के अंदर तो रहता. Now is investigating. Sadly, FBR वो potential use कर चुका है to be investigated. ऐसे कि ये सारे investigative audit होता है. एक अदालत से बना के उन्होंने I&I जिसकी रिपोर्ट समझी जाती है कि ये इसे डेविएट नहीं किया जा सकता. But investigative function जो है वो टैक्स पेयर को बुलाए बगैर करना होता है. प्रोविजन डाली है एक बार 5 के नीचे भी डाली थी 2012 में, बाद में रिमूव कर दी. ये एडिशनल कमीशन इंक्वायरी कर सकता है. इंक्वायरी का लफ्ज़ ना कोई इन्वेस्टिगेटिव के लिए था. They should attempt to inquire before you confront the taxpayer कि इसके पास ये है. Next is inquisitional. ट्रेजिकली पाकिस्तान में सबको मजा उसको ही आता है inquisitional. वो कहते हैं मैंने नोटिस दे दिया बड़ा था, अब तुम लाके मुझे बताओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, जो नहीं दिखा सकोगे ना तो तुम कसूरवार हो. बट मिसिंग एविडेंस भी टैक्स पेयर पे डाल दिया जाता है. थानेदार को मजा आता है, कस्टमर ऑडिटर को मजा आता है, और ये इनकम टैक्स दैट इज इंक्विजिशनल. जैसे नया काम करना दैट इज इंक्विजिशनल. एक बंदा है उस पर चार्ज लगा दो, एलिगेशन लगा दो, और वो साबित करेगा कैसे ये झूठा है.
DCB सिस्टम है, मुझे समझाओ, मुझे सेटिस्फाई करो, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अल्लाह का शुक्र, उसके बाद फर्स्ट टाइम हमारे पास जब आता है वो एडवर्सरियल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। उसका एक काले कड़े की से पड़ता है, इस तरफ खड़ा होता है। अब दो का मुकाबला है, अब वहां पे DR कमजोर हो जाता है। अब उसको डिफेंड करना पड़ता है कि मैंने ये किया क्या है। और एडवर्सरियल सिस्टम जो है कॉमन लॉ की है कि दो बंदे आएंगे, दोनों अपना भी केस ट्रीट करेंगे, जजेस ऊपर बैठ के एज ऑफिसर वो दोनों को सुनने के बाद फैसला करेंगे कि क्या इंसाफ के कायदे जो भी कायदे हैं जस्टिस के, एक्विटी और फेयरनेस, जिस सारे और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल ट्रीटमेंट हुई है, हैज बीन ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, सो ट्रिब्यूनल पे इसलिए भी ग्रो है ट्रस्ट है कि एडवर्सरियल सिस्टम आ चुका है एंड द जजेस आर नॉट अंडर FBI anymore, they are under the system of law. तो फर्स्ट टाइम में हमारी जो फाइल है वो सेकंड अपील में FBI से बाहर निकलती है और जिसको हम लफ्ज यूज करते हैं लॉ के, हमारे जो मुस्लिम जजमेंट्स आई है कि इंडिपेंडेंट फॉरम। तो सेकंड अपील हमारे पास बेसिकली आती है। अब एक जो ज्यादातर जो लिटिगेशन हमारे पास जो लैंड कर रही है वो मिसिंग एविडेंस के ऊपर है। अब सब आपने 10-16 साल लिखना होता है कि मैंने 284 में सिलेक्ट हुआ, 170 का नोटिस दिया, तो उसके बाद बंदे ने आया नहीं है या आया कम कागज नहीं है, ये वो सारा कुछ तो मिसिंग एविडेंस की तरफ डाल के लायबिलिटी किस तरह की क्रिएट होती है। तो एक 161/205 ये उसकी कहने लगे इनकम से कई गुना ज्यादा होती है, वो पे करने भी जाए ना तो शायद कुछ ना कर पाओ। दूसरा होता है 21C कि उसने एक एक्सपेंस क्लेम कर लिया है और उसको उसका गवर्निंग का एविडेंस दे पाया जो भी है, और वो कहेंगे कि 21C लगा, ये भी पूरा हेड ऑफ इनकम जो है ना वो एक 174 अकाउंट का हेड है जिसमें वो कह रहे हैं मुझे इसने मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए इनवॉइसेस दे दी, ट्रांजैक्शन एक्सप्लेन किया इसमें और इस एक्सपेंस को मैं क्लेम एक्सपेंस को मैं रिवर्स करता हूँ। और ये स्टूडेंट माना विक्टोरिया 111 सारे पीछे भी बना कोई एसेट आ गया है, किसी की क्रेडिट अकाउंट की क्रेडिट इधर भी आ सारे गए हैं और उसके ऊपर उधर जाके चल भी लेकिन 111 जो है वो आई थिंक सुप्रीम कोर्ट का कोई इतना डिपार्टमेंट डिफेंड नहीं कर पाया, स्पेशली को अब तो जजमेंट आ लेकिन उसके बाद एटलीस्ट के ऊपर काफी छोड़ रहा है। पुराने दौर में इनका जो है उसके ऊपर लोगों का मेंबर होता था और जो डिप्टी कमिश्नर एसएससी ऑफिसर है उसकी स्टैंडर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस, उसकी नेचर ऑफ बिजनेस को कॉम्प्रिहेंड करना और उसके बाद उसकी इनकम का जिसको ट्रू सेंस असेसमेंट करेंगे वर्क करके, और काफी दफा मुझे बताना है कि टेस्ट करके आता है कि मैं फील्ड में नहीं जाऊंगा, आगे ऐसे लिटिगेशन में टाइम लाया होगा, मैनेजर लाया होगी, फीसें होगी, ये वो कहते थे इस रास्ता जो है ना, और नॉर्मली हिस्ट्री ऑफ द केस से ज्यादा डेवलप नहीं किया जाता था और हिस्ट्री ऑफ द केस मेंट समथिंग। बिजनेस जो है अब्रप्टली ग्रो नहीं करते, अब्रप्टली कोलैप्स नहीं करते, लेकिन उसकी एक सेंस हो रही होती है कि यार ये डिक्लाइन में जा रहा है या ये राइज जा रहा है, और कई दफा वो इंस्पेक्टर को इंक्वायरी भी माफ कर देते थे। सेंसिंग अफसर उस वक्त अंजुमन ताजमहल के साथ बैठते थे, फैन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के साथ बैठते थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी जाते थे। मेरे यहाँ में इंडस्ट्रियल और जो सेंसिंग डिपार्टमेंट है जो भी अथॉरिटीज हैं उनमें शायद डिस्कनेक्ट थोड़ा हो चुका है। तो असेसमेंट जो है उसका तल्लक बंदे की बिजनेस हेल्थ के साथ ही नफा नहीं होता है, इसके क्रेडिट रुपये के साथ नहीं होता कि गवर्नमेंट ने इस नौकरी को दूर करने की जो एरिया थी कि वो क्या था कि एक तरफ इतना बड़ा बंदा उपाय पे ही कर दे तो बिजनेस बंद हो जाता है और फिर बंद डेवलप सक्सेसफुल। दूसरा यह कि सेंसिंग अफसर जो है उसको अपनी जजमेंट डिफेंड करनी पड़ती थी। पहली चार अगर उसने
बिल्कुल तुक्के वाली असेसमेंट की है, उस असेसिंग अफसर को कमिश्नर अपील तलब कर लेता था कि अपनी फाइल लेके आ जाओ मेरे पास, जो तुमने किया क्या है। और वो अपने ऑर्डर में तो लिखते थे कि इसने अफसर को काउंटिंग स्टैंडर्ड की समझ नहीं आई, कि ट्रांजेक्शन को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया। और ये और जब वो बड़ी डिमांड को ह्यूज डिमांड कहा जाता है ना, अगर वो टूटती थी तो डिप्टी कमिश्नर जो है उसको कहा जाता था कि तुम्हारा फैसला टेस्ट ऑफ अपील स्टैंड नहीं कर सका। टेस्ट ऑफ अपील से फेल होना जो है दे वर हेल्ड अकाउंटेबल, और उसको थोड़ा सा पता होता था कि यार मेरा फैसला बिल्कुल ही कहे कि बिल्कुल there's no left to stand on। So इस कहने ट्रिब्यूनल की फिर हम आ जाते हैं अपने डॉक्टर के हवाले से। ट्रिब्यूनल का टॉपिक है कि फंक्शनल प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो बहुत ही सारे ट्रिब्यूनल में मेंबर्स पता का शुक्र है कि ट्रिब्यूनल के बेंचेस जो फंक्शनल तो हैं। बाकी स्टेट जो है उसमें हमारी लिबरल पॉलिसी रही है ट्रिब्यूनल की थ्रू आउट, ये बड़े को क्लियरिटी हो, लेकिन स्टेट जो है वो उनको अलाउ करके लेजिस्लेचर मैटर जो है वो सब्सिक्वेंटली जर्नल करने की अगर वो तैयारी नहीं है, लेकिन स्टे आप दे दें क्योंकि जब रिकवरी हो जाए तो फंड मैकेनिज्म बहुत मुश्किल है। दूसरी साइड पे है कि स्टे जो है हमारा लॉ ही कहता है कि वो 180 डेज तक ही हम दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रोविजन जो है वो ऐसे फ्रेज नहीं हुई कि वो मैंडेटरी कही जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जजमेंट आई कि ये डायरेक्टली इन नेचर है, 180 डेज की जो लिमिट है। तो हम क्यों 60 डेज नॉर्मली ज़्यादा नहीं देते, ताकि 2-3 दफ़ा जो है ना 30 डेज के बाद जो है वो 180 डेज के अंदर 3 या 4 दिन में मेन अपील डिसाइड करना हमारा मकसद होता है। तो स्टे की एक्सटेंशन जो है वो ट्रिब्यूनल को भी टाइम दिया है, एप्लेंट का भी टेक्स्ट पीरियड जो है उसको भी टाइम दिया है, और मुगला का भी, और कई लोग गुजरात से ट्रैवल करके जाते हैं वहाँ पे। तो इनडेफिनेट स्टे जो है वो नहीं किया जा रहा। सजेशन है, बेटर सजेशन है, हमेशा आपके तुम्हारे पास आए, थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड, और हर चीज का हल जो है ना वो सुनने के बाद ही बनता है। जो केस जैसे कहता है इस केस है दिस वन मैरिट, तो वाकई ही अगर कोई चीज नजर आती है केस बेसिस। दूसरा कई लोगों का इतराज होता है कि बेंचों का इतराज होता है, वो भी हमारी थोड़ी सी लिबरल पॉलिसी रही है कि बेंच ट्रांसफर कर देते हैं, अर्ली हियरिंग भी सेशन कर देते हैं, सारा कुछ। बाकी एक ट्रैक है कि कहा गया कि ट्रिब्यूनल जो है लोअर फोरम के ऊपर कोई ऑर्डर करेंगे वो बाइंडिंग हो जाए उनके ऊपर। ट्रिब्यूनल जो है ये बेसिकली फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। दो केसेस के कभी भी फैक्ट सेम नहीं होते हैं। जहां पे सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ होती है वहां पे क्लबिंग ऑफ केसेस भी परमिटेड है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और उनकी जो बाइंडिंग प्रेसिडेंट की हैसियत जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेक्शन दी है 189 आर्टिकल में 201 में। वहां पे क्या है, द क्वेश्चन ऑफ लॉ और द प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया उस फोरम से, अगर हाई कोर्ट है तो सूबे के आता, अगर सुप्रीम कोर्ट है पूरी कंट्री तक, वो बाइंडिंग होगी ऑन ऑल लोअर कोर्ट्स। ट्रिब्यूनल कोर्ट इसका की कोई ऐसा ना लॉ ने कहीं दिया हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया हुआ है, लेकिन हमें जब जो डिफाइन किया गया है दिस इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। अगर हमारा जो क्वेश्चन ऑफ लॉ हम डिसाइड ही कर देते हैं वो अंडर 123 जो है अवेलेबल रेफरेंस पर करते टेक्स्ट रेफरेंस ऑफ हाई कोर्ट, तो हमारा क्वेश्चन ऑफ लॉ जो हम डिसाइड करते वो भी फाइनलिटी नहीं करता।
ऑर्डर्स को स्ट्रिक्टली बाइंडिंग करें तो ये एम्पलेटेड अप्रोच जो है जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि सेक्शन चेंज हो जाते हैं, प्रोसीजर्स के सेक्शन चेंज हो जाते हैं, सेक्शन में एक्सप्लेनेशन जैसे जजमेंट आई कि जी 111 का नोटिस जो है उसके हवाले से रिस्पॉन्स के नीचे एक्सप्लेनेशन आ गई। सो हमारा कहना है कि लेट द लॉ ग्रो, ट्रिब्यूनल से जजमेंट ऊपर जाएगी तो वहीं से वो लॉ इवॉल्व होगा, डेवलप होगा। लेट द हायर फॉर्म जिनको कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है बाइंडिंग का, वो इसको डिसाइड करें। हमारे में यूनिवर्सिटी और नए एंगल से उसी प्रोविजन को इंप्लीमेंट करना, उसी प्रोविजन को ट्रांजैक्शन में लागू करना और अपने फाइनेंशियल जो आपके स्टेटमेंट्स उनके ऊपर उसको लॉ पर इंप्लीमेंट करना, ये मिशन है हमारे कहते हैं 3 स्टेजेस का। असेसिंग ऑफिसर, एक ऑफिसर उसी मटेरियल को देखता है, उसी ट्रांजैक्शन को देखता है, उसी फैक्ट्स को देखता है और लॉ को लागू करता है। वो बहुत अच्छी तरीके से उसको एस्टैब्लिश करता है। एक जो है वो एस्टैब्लिश नहीं करता। हाउ कैन वी, और दूसरा हमारा बैंक जो है हर बैंक इंडिपेंडेंटली अपना एक ऑर्डर है। हमारी नॉर्मली क्लबिंग ऑफ केसेस का हमने अभी तक नहीं किया। क्यों? अगर वो हो जाएगा तो कई केसेस जो वो सफर करेंगे। तो ईच केस हैज ऑन मेरिट। अब आगे बात करेंगे तो ये एफटीआर ऑफिसर्स को लेटर लिखने की हमारे पास नाम तो तैयार है, बिकॉज यू आर नॉट पार्ट ऑफ द एफटीआर। वी आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। अगर कोई एफटीआर को सर्कुलर एंड एनी इंस्ट्रक्शन इशू बाय द एफटीआर ऑफिसर, वो उनके सेक्शन में फिनिश करता है द ऑर्डिनेंस कि दैट इज बाइंडिंग ऑन द subordinate officer of that department. So we cannot issue any correspondence to the FTR. दूसरा के हमारे पे रिस्ट्रिक्शन है कि we can only determine the dispute on the order of the authority below. Assessment order और commission B का order है वो, और उसके साथ कहेंगे ग्राउंड, नॉर्मली हम ग्राउंड तक अपने को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हाई कोर्ट हैज वास्ट वी हैव नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। पर अंदर आगे ट्रिब्यूनल पे जो फंक्शनिंग इंप्रूवमेंट है, मेरा पहले किसी का मेरी अपॉइंटमेंट के बाद और था और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में कराची जा रहा हूँ। जहाँ तक मेरी इम्यूनिटीज है जो मेरी फंक्शनली बेहतर करना जो है, बाकी जहाँ तक जुडिशियल ऑर्डर है उसमें द चेयरमैन कैन नॉट इंटरफेयर। एवरी जुडिशियल मेंबर एंड एवरी काउंटर मेंबर ऑन द बेंच कैरीज द इंडिपेंडेंट माइंड। जुडिशियल फंक्शन में चेयरमैन के पास कोई इख्तियार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिवली फाइलिंग, फिक्सेशन, ऑर्डर की डिस्पैच, टाइम का प्ले, रोस्टर मैनेजमेंट, ये सारे जो कभी मैं हमेशा हम कॉम्प्लेक्स तरीके से मैनेज करेंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अपने हमारे विभाग को अपनी बात दिए। मैं अभी इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चलना चाहता हूँ और शीट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि डायरेक्टर इन चीफ जनाब मियां अब्दुल वहाब साहब, जनाब सदर मोहतरम निसार अहमद शेख साहब का स्टेज के इस साइड पर आ रहे हैं और यहाँ फकीर असर साहब चेयरमैन पाकिस्तान को शीट से नवाजों की बात से मैं
السلام علیکم.